Hello, my dear friends. Today we will discuss about the electronegativity, and this is the last trend of periodic table. Then some applications we have to discuss. So see, in backside exercise there is one problem given. Energy of a electronegative an energy of an electron in ground state of hydrogen atom is given this much joule, and calculate the ionization enthalpy of hydrogen in terms of joule per mole, and idea apply of mole concept. So see, energy in a ground state in hydrogen atom is minus 2.18 multiplied by 10 raised to minus 18 joule. Ionization enthalpy according to chapter 2 you know very well, alpha E इन्फिनिटिव माइनस ई एन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिस सेल में प्रेजेंट है उसमें से उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेजना है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस, मानो कि ये न्यूक्लियस है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमने भेज दिया। तो पहले यहाँ पे था, तो इसकी हम एनर्जी गिनेंगे ई एन, इसकी एनर्जी गिनेंगे ई इन्फिनिटिव। तो ई इन्फिनिटिव ज़्यादा होगी, तो ई इन्फिनिटिव minus En will be our ionization enthalpy. Is it clear? So, by using the formula of second chapter, structure of an atom, you can find C. Ionization enthalpy is equal to E infinitive minus E1 multiplied by Avogadro number, because you have to apply mole concept. So your answer will be in a kilojoule per mole of E infinitive according to first chapter is equal to 0. In Bohr's atomic model, Bohr postulate the energy of electron which is at infinite distance is considered 0. Okay, so E infinity value you don't have to find, En already you are given. So see, 0 minus is very easy sum. 0 minus minus 2.18 multiplied by 10 raised to minus 18 multiplied by Avogadro number, and the final answer will be your 1.313 multiplied by 10 raised to 6 joule per mole, or you can find kilojoule per mole by dividing with 1000. Okay, so kilojoule per mole will be 10 raised to 3. Okay, divided by 1000. Or based on ionization enthalpy that we discussed in earlier lecture, 19 number problem is there. The first ionization enthalpy is given boron, aluminium, gallium, indium and thallium. This is the backside value, downside value is the first ionization enthalpy. तो how would you explain this deviation from the general trend? जैसे आपको पता है कि down the group ionization enthalpy decreases. So here 801, then 577 aluminium, then 579. Means aluminium to gallium ionization enthalpy should be decreases. So here is the first exception. Here ionization enthalpy increases. Gallium to indium, that is regular trend, ionization enthalpy decreases. But here once again indium to thallium, ionization enthalpy tremendously increases from 558 to 589. Means group number 13 is not working. So very most important question, and this is the application of our trend understanding. रेगुलर ट्रेंड को आप याद करिए, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ग्रुप नंबर 13 is the most irregular group. Okay, so explain one by one. The large ionization enthalpy of boron, it is due to aluminium has lower ionization enthalpy with respect to boron because aluminium in bigger in size. तो इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि बोरॉन और एल्यूमिनियम में रेगुलर ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बट गैलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम. ओके, तो व्हाई इन गैलियम लाइक दिस? क्योंकि गैलियम में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो 3D की है, एंड 3D की शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ऐसी पुअर होती है, जैसे मानो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन
मानो कि मुझे इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इस ऑर्बिट से निकालना है, और यहाँ मानो कि शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, तो बोरोन में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p1 आफ्टर इनर्ट गैस। एल्यूमिनियम का होगा 3s2 3p1, लेकिन यहाँ 3d रहेगी, 3d इज कम्प्लीटली वैकेंट, 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ आएगा 4s2 गैलियम में, दिस वन इज बोरोन, दिस वन इज ऑफ एल्यूमिनियम, दिस वन इज ऑफ गैलियम, तो इसमें आएगा 4s2 4p1। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रफ में पहले लिख लीजिएगा, मुझे तो डायरेक्ट पता है इसलिए। तो यहाँ पे तो डी 3d वैकेंट है, तो शील्डिंग इफेक्ट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ये जो है यहाँ पे 3d की शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें 4p में से, लेकिन फोर्थ सेल में से। लेकिन देखिए एल्यूमिनियम टू गैलियम जब आप आते हो तो इलेक्ट्रॉन 18 बढ़ जाता है, प्रोटॉन भी 18, 8 8 18 18, ऐसा है ना। तो एल्यूमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 13, इसमें 18 डालेंगे तो ये आएगा 31। इज इट क्लियर? तो सीधा रीज़न, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, सीधा रीज़न आप दे सकते हो कि एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में बढ़ेगा, उसके साथ शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी ज़्यादा होगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैलियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम। ट्रेंड उल्टा होना चाहिए, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट उसकी 3d की इनइफेक्टिव है, इसीलिए अट्रैक्शन जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो एल्यूमिनियम से गैलियम में ज़्यादा है। साइज की अगर हम बात करें तो साइज में भी ये प्रॉब्लम है। एल्यूमिनियम की साइज जो है वो गैलियम से डाउन द ग्रुप छोटी होनी चाहिए ना, कैसी होनी चाहिए? छोटी। एल्यूमिनियम शुड बी स्मॉलर इन साइज विथ रिस्पेक्ट टू गैलियम, लेकिन ऐसा नहीं है, एल्यूमिनियम इज बिगर इन साइज विथ रिस्पेक्ट टू गैलियम, क्योंकि गैलियम में शील्डिंग इफेक्ट इतनी हीट है नहीं, तो वो पीरियोडिक में कैसे चार्ज बढ़ता है तो साइज डाउन होती है, ऐसे इसकी साइज कम होती है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो पहला एक्सेप्शन ये एक लाइन में आप समझा सकते हो। बाकी आप आगे देखो तो यहाँ पे ट्रेंड रेगुलर जा रहा है, गैलियम टू इंडियम हमें कुछ समझाना नहीं है, ट्रेंड रेगुलर है। देखिए 579 टू 558 डिक्रीज हो रहा है, तो ये फिर से रेगुलर ट्रेंड है। आप बोल सकते हो कि फ्रॉम गैलियम टू इंडियम हैज़ हायर लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू गैलियम, तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, रेगुलर ट्रेंड दोनों एलिमेंट में जा रहे हैं। फोर्थ में यही प्रॉब्लम आएगा, तो आपको अब ऑर्बिटल बदल देनी है, यहाँ पुअर इफेक्ट 3d की है तो यहाँ पूरा इफेक्ट 4f की है, और शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है ये है, s की ज़्यादा होती है p से, p की शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है d से, और d की ज़्यादा होती है f की, ये f की पुअरेस्ट होती है, तो यहाँ पे 4f की शील्डिंग इफेक्ट लगेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए तो, और गैलियम में 3d की शील्डिंग इफेक्ट लगेगी। बाकी आगे जो दो एलिमेंट आते हैं किसी भी ग्रुप में, उसमें d ऑर्बिटल वैकेंट होती है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट सिर्फ आपको लिखने हैं शॉर्ट में, और ये 12th स्टैंडर्ड में भी काम आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिया है। दिस वन इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेंड पी ब्लॉक में भी ये समझाना पड़ेगा। नाउ एक एक्सरसाइज में 16 नंबर क्वेश्चन है बेस्ड ऑन अवर थियरी। ये ऑर्डर जो है, एक्सप्लेन वाई। पहले तो बेरिलियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन, वाई बेरिलियम हैज़ अ हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। आप बाद में ये डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा, पहले मैं बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये ऑर्डर किसका है? सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड। द एक्चुअल आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर शुड बी लाइक दिस, ठीक है। हमारा जो रेगुलर ट्रेंड है पीरियड का, इन अ पीरियड एज वी मूव लेफ्ट टू राइट,
तो क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए फ्रॉम लिथियम टू नियोन। लेकिन सेकंड पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी में दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन यहाँ क्या है, बेरिलियम। रेगुलर ट्रेंड ये होना चाहिए, बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम होनी चाहिए, बेरिलियम की ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शन है, बेरिलियम की बोरोन से ज़्यादा है। तो पहले बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बोलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का 4 है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए 1s2 2s2, ठीक है। फिर किसका लिखेंगे हम लोग, बोरोन का। बोरोन का एटॉमिक नंबर बोलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 है बोरोन। बोरोन Z इज इक्वल टू 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन S में से निकालना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन P में से निकालना है। तो शेल सेम है, n इज इक्वल टू 2। तो न्यूक्लियस के साथ जो ऑर्बिटल किसी भी शेल में एट्रैक्शन ऑर्डर है वो ये है, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। S से निकालना है किसी भी शेल में तो ज़्यादा ताकत लगेगी, P में कम लगेगी, D में उससे भी कम लगेगी, S में लोएस्ट लगेगी, ठीक है। तो ये p ऑर्बिटल जो है उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये p में से निकालना विथ रिस्पेक्ट टू s इजी है। इसमें दो कंसेप्ट लगेगा, एक तो s कम्प्लीटली फिल्ड है और दूसरा s ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट रहती है, तो ये डिफ़िकल्ट होगा, ये डिफ़िकल्ट होगा। तो ये पहला एक्सेप्शन आप समझा दीजिए, यहाँ पूरा लिखा है। दूसरा जो है वो मैं समझा रहा हूँ, मैं आंसर रेडीमेड आपको दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ सिर्फ। ऑक्सीजन हैज़ लोअर देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन मैंने पहले बोला ना, ये एक्चुअल ट्रेंड है, एक्चुअल ट्रेंड है। मैंने बोला था ना कि ये हमारा रेगुलर नहीं, ये रेगुलर ट्रेंड नहीं है, रेगुलर ट्रेंड में लिख के देता हूँ, ये प्रैक्टिकल ट्रेंड है। क्योंकि मैंने बेरिलियम देखा तो मुझे पता चल गया, मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में पढ़ दिया मैंने। तो एक्चुअल ट्रेंड ऐसे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर एक्सप्लेनेशन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, और उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन ना, 17 ग्रुप। तो रेगुलर ट्रेंड ऐसा होना चाहिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये बेरिलियम और बोरोन में प्रॉब्लम है, बोरोन पहले है, ठीक है। ये थोड़ा मेरी गलती थोड़ी करेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा क्या है, हैज़ लोअर, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए ना ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन लेस देन, तो ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से कम। ये राउंड को पहले देखिए, ये राउंड को देखिए, दोनों में राउंड कंपेयर कीजिए। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन नंबर 1, दिस वन, एंड ये एक्सेप्शन नंबर 2। ये जो है यहाँ फिर से दिखा दूँ, ये हमारा रेगुलर ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिसिटी। ये एक्चुअल दिखाई देता है प्रैक्टिकली, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये प्रैक्टिकली दो एक्सेप्शन है, फिर से मैं राउंड करके दिखा दूँ। ये रेगुलर ट्रेंड में नहीं है और ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन रेगुलर नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, नाइट्रोजन 15 का है। तो नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए। इन पीरियड एज वी मूव लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो दूसरा समझाना है, चलिए मैं जल्दी जल्दी में समझा देता हूँ। और नाइट्रोजन Z इज इक्वल टू 7, ये मैं एक बार समझा भी चुका हूँ शायद थियरी में। 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 और 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें ये हाफ फील्ड है, स्टेबल है, और ये एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा तो 2p3 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन देने की ज़्यादा रहती, ठीक है, टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन इज मोर।
क्लियर। तो ये स्टेबल है तो ये इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यहाँ 2p4 है तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा। तो ये ट्रेंड आप इससे समझा सकते हो। लिखना कैसे है उसमें लिखा ही है, ठीक है। तो ये समझा दिया। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात करते हैं। चलिए, वो ऐसे भी बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन और फ्लोरीन में तो ठीक है कि फ्लोरीन की तो ज़्यादा ही होगी ना, वो तो रेगुलर ट्रेंड में आता है। ऑक्सीजन 16 ग्रुप में है और फ्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप में, ग्रुप 17, इसका ग्रुप है 16। तो देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिख लो, Z इज इक्वल टू 8, Z16 नहीं, Z इज इक्वल टू 8। ग्रुप 16 था, शायद मैंने Z16 लिख दिया था, लेकिन ग्रुप 16 है। Z इसका 8 है, 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p, कितने 10 हो गए ना, 3p4, 8 ही भरने, 8 ही, 16 का 16 तो ग्रुप है, 1s2, 2s2 और 2p4, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन ही भरने। अब फ्लोरीन में 9, Z इज इक्वल टू 9, तो 1s2, 2s2, 2p5, ये 9। अब ये तो एक निकाल के स्टेबल बन जाता है तो इसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन देने की रहेगी। लेकिन यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो स्टेबल हो जाता है, तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की बिल्कुल नहीं रहेगी। हाँ, बाय फोर्स निकाल सकते हैं। तो आप ये भी समझा सकते हो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन का लेके, ऑक्सीजन को एक बार नाइट्रोजन के साथ लेके, ऑक्सीजन को एक बार फ्लोरीन के साथ लेके आप समझा सकते हो। और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पूरा आंसर है, ठीक है। ये सब, ये पहले क्वेश्चन का आंसर ठीक से पढ़ के लिख लीजिए, और ये जो दूसरा मैंने शॉर्ट में आपको समझाया, ये आंसर। आप p ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सपांड करके भी लिख सकते हो, 2px1, 2py1, 2p, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप 2p3 भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है 2px2, 2py1, 2pz1, आप ऐसे भी कर सकते हो, 2p5 डायरेक्ट। ओके, अब हाँ, ये दोनों मैंने थियरी में समझा दिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स वुड हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की ही होगी, और फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये तो पीरियोडिक ट्रेंड में है, जैसे पीरियड में ये जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। तो ये ट्रेंड मैंने नहीं, ये तो हमारा रेगुलर ट्रेंड है, और फ्लोरीन और क्लोरीन वाला वो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन है, ठीक है। 16 और 17 ग्रुप, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में लास्ट में मैंने आपको समझाया। चलिए, पहला एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन द क्लोरीन, ठीक है। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप इसको लिख के आगे बढ़िएगा 1, क्योंकि वो तो थियोरी में मैंने इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद एक आता है ये 17 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन द मैग्नीशियम। तो पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की जो है वो मैग्नीशियम से लोअर है, मतलब कि सोडियम में पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ठीक है, मैग्नीशियम से, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मैग्नीशियम से डिफिकल्ट है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन की रिदम को समझिएगा, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा इसमें। कि सोडियम, देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, शॉर्ट में मैं अगर समझाऊं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की मैग्नीशियम से कम है। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की मैग्नीशियम से ज़्यादा है। बस यही समझाना है, बहुत इजी है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया, देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है, सोडियम प्लस का ये एक इलेक्ट्रॉन 3s1 से निकल गया, ठीक है। मैग्नीशियम का ये है, मैग्नीशियम प्लस का ये है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 2+ तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा है। मैग्नीशियम में 2+ पॉसिबल है,
लेकिन अब देखिए सोडियम प्लस, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम प्लस, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पहले देखना है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन। चलिए पहले सोडियम को देखिए और मैग्नीशियम को देखिए। यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन 3s1 में से निकालना है, पहला इलेक्ट्रॉन 3s2 से निकालना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, और ये तो एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगी तो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इजी रहता है, ये इजीली निकलेगा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता, लेकिन इसके कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में सोडियम में से इजीली निकलता है, तो पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब चलिए इसको ले लीजिए, 2p6 और मैग्नीशियम प्लस। अब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इन दोनों में से दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो निकलेगा ही नहीं, मोस्ट डिफ़िकल्ट। सोचिएगा, मोस्ट डिफ़िकल्ट, क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है। देखिए सब मोस्ट डिफ़िकल्ट, पॉसिबल ही नहीं है। 1:2 2:2 2p6 प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं। और यहाँ पे देखिए अब 3s1 है, खाली हो जाएगी तो वो सोडियम वाली, तो दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, तो पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की मैग्नीशियम से कम है। दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, उसमें मैं बोलूँगा कि सोडियम इज ग्रेटर देन सोडियम प्लस ग्रेटर देन मैग्नीशियम प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जो आप ये देख रहे हैं, इसमें मैं बोलूँगा आपसे कि सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम। पहला इलेक्ट्रॉन सोडियम से इजीली निकलता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम प्लस से इजी निकलता है। तो ये पूरा आपको समझाना है, जो बहुत ही ईजी है। अब देखिए 21 नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन, वो भी हमारी जो आगे थी थियरीज के हिसाब से ही, कि व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एज पॉजिटिव, या तो मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप क्वेश्चन अगर ठीक से किए हो, है ना, तो आपको पता है कि हर एक एलिमेंट की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव ही होती है। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू ऐड इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन बिकम्स लेस देन द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो इलेक्ट्रॉन दूसरा अगर हम डालते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो पहले इलेक्ट्रॉन पे तो रिपल्सन थोड़ा होता ही है। अब दूसरा डालने में तो क्या है कि वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, हमें बाई फोर्स डालना होता है, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए, और हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन 3.6, ये आपको जस्टिफाई करना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन थर्ड पीरियड ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, उसकी 496 737 और 786 किलो जूल है। तो आपको बताना है कि एल्यूमिनियम की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 की आपको दी है, तो एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सोडियम और मैग्नीशियम के बीच में आएगी या मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बीच में आएगी। और एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऐसे रहते हैं, कैसे रहते हैं? अब देखिए ये सब नहीं अगर आप समझेंगे ना, तो चैप्टर का ख़त्म होने का कोई मतलब ही नहीं है। यही इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एमबीबीएस बनना दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इंजीनियर बनना दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। बाय लर्निंग द थिंग हाउ कैन यू अप्लाई प्रैक्टिकली, उसको बोलते हैं सक्सेस। अब देखिए आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ ली है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ ली है, लेकिन आप यहाँ क्या सोच सकते हो, सेकंड चैप्टर का सपोर्ट लेके आप इसमें कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वही साइंस का पर्पस होता है कि आप नॉलेज लेने के बाद इसको कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए पीरियोडिक टेबल में सोडियम, इसके बाद आता है मैग्नीशियम, इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, और इसके बाद आता है सिलिकॉन। अगर ये पूरा पीरियड है, कौन सा? थर्ड पीरियड। अगर मैं पीरियोडिक ट्रेंड की बात करूं, तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, मतलब कि ट्रेंड ऐसा होना चाहिए, ठीक है।
अब एल्यूमिनियम 3 की तो आपको दी गई है, सोडियम की 496 और इसके बाद ये मैग्नीशियम की 737 और सिलिकॉन की ये। अब एल्यूमिनियम को बीच में ऐसे रखा है। तो यहाँ आप ये सोचेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही लॉजिकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव में ऑर्डर में आ चुका है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बीच में इसका वो लाइज होगा, क्या सोचते हो आप? यही सोचेंगे ना कि मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बीच में आएंगे। तो मैग्नीशियम की कितनी है 737 और सिलिकॉन की कितनी है 786। तो हम लोग यही इसके ऊपर ही सिलेक्ट करेंगे कि इसकी आएगी 760, क्योंकि उसके बीच में ही आ रहा है। लेकिन साहब 575 है और ये आ रहा है सोडियम और मैग्नीशियम के बीच में। तो रियल ट्रेंड मेरे प्यारे बच्चों ये है, रियल ट्रेंड। अब तो ये एक्सेप्शन हो गया फोर्थ पीरियड का। रियल ऐसे है, सोडियम, इसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, इसके बाद आएगा मैग्नीशियम और इसके बाद आएगा सिलिकॉन। तो आंसर है हमारा मोर क्लोज टू 575, नॉट 760। यहाँ तो दो वर्ड में ऐसे समझा दिया। आप कोई भी महंगी बुक लेंगे तो भी इतना कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऐसा क्यों है। तो मैग्नीशियम से भी ये कम क्यों है? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये मैग्नीशियम से कम है। मैग्नीशियम की कितनी है 737। तो मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम Z=12। अब देखिए नियोन 10 कंप्लीटेड, कितना, कौन सा पीरियड, थर्ड पीरियड 3s2। अब एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम का Z=13, जस्ट नेक्स्ट आता है, उसका भी नियोन 10 कंप्लीटेड और हम करेंगे 3s2 3p1। देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ मुझे 3s में इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ 3p से निकालना है। और कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट रहता है? S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। तो S से निकालना। अगर N=3 सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो S से निकालना मुश्किल है, P से निकालना ईजी है। तो ये अगर 737 है तो ये 737 से कम ही होगी, 737 से ज़्यादा नहीं होगी। तो 760 बिल्कुल नहीं आएगी। आप ऐसे भी समझा सकते हो अगर आपको समझ में आ गया है, वरना आपको ये पूरा एक पैराग्राफ लिख देना है, ठीक है। सिंपल आंसर ये है। अगर डिटेल में अगर आप समझाना चाहते हो तो समझा सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं और 3.7, और ये बहुत ईजी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हमने कल ही डिस्कस किया। आपको इसमें से बताना है कि मैक्सिमम किसका होगा और मिनिमम किसका होगा। तो क्लोरीन का मैक्सिमम होगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और उसमें भी क्लोरीन, और फॉस्फोरस का सबसे कम होगा, ठीक है। वो पीरियोडिक ट्रेंड से आप समझा सकते हो। यहाँ आंसर भी आपके सामने है, उसमें कोई समझाने वाली बात, मतलब कि कोई लॉजिकल बात नहीं है। सीधा पीरियोडिक टेबल देख के भी आप बता सकते हो कि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फॉस्फोरस की सबसे कम है। क्योंकि ये फॉस्फोरस जो है 15 ग्रुप का है, सल्फर 16 ग्रुप का है, क्लोरीन एंड फ्लोरीन 17 ग्रुप का है। तो ये एक्सेप्शन में आता है, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन है, क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन द फ्लोरीन, तो ये हाईएस्ट हुआ। और अगर ग्रुप की बात करें तो फॉस्फोरस का लेस नेगेटिव होता है सल्फर से, और सल्फर का लेस नेगेटिव होता है क्लोरीन फ्लोरीन से, क्योंकि जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मोर नेगेटिव होगी। तो ऐसे आप समझा सकते हो। अब मैं ट्रेंड के ऊपर आता हूँ। अगर मैं ये नहीं समझाऊंगा और चला जाऊंगा तो मतलब कि कोई हमने जो थियरी की उसका मतलब ही नहीं है। इसलिए मुझे रुकना ही रुकना है कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे राइट एंड नोट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। कोई रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कंपैरिजन है, जैसे कि ब्यूटीनेस अगलीनेस एक कंपैरिजन है ना। फेयर अनफेयर एक कंपैरिजन है। लॉन्ग शॉर्ट एक कंपैरिजन है, ठीक है। अच्छा बुरा एक कंपैरिजन है। सुख दुख एक कंपैरिजन है। हम जिसको दुख मानते हैं दूसरा आदमी उसे सुख मानता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफाइन करेंगे कि कोई एलिमेंट की जो टेंडेंसी ऑफ एन एटम
टू अट्रैक्ट, एटम मतलब कि एलिमेंट, एलिमेंट का एक कोई एटम जो बॉन्डेड होता है किसी के साथ, ठीक है, attract the shared pair of electron towards itself when it combine with a covalent bond। अब कोवेलेंट बॉन्ड तो हमारा बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर में, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि मानो कि हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है क्लोरीन के साथ, तो इसमें मैं आपको ये बोलूं कि आइडियल कंडीशन ये होनी चाहिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का शेयर होता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बनता है। लेकिन क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से कंडीशन कैसी है कि हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ और ये भी क्लोरीन की तरफ, तो ये बॉन्ड जो है इस तरफ खींचा हुआ रहता है, खींचा हुआ रहता है। इज इट क्लियर? तो उसके हिसाब से हम आगे पोलैरिटी भी स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी द पोलैरिटी बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। तो ये एटम जो है उसकी टेंडेंसी ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे हम किसी के साथ बिजनेस करते हैं और पूरा पैसा अपने पास रखता है, हमको कुछ देता नहीं है, मतलब कि कुछ चाहिए तो बहुत कहने के बाद तो पूरा जो हिसाब जो है वो अपने पास रखेगा, कुछ इसके पास थोड़ा बॉन्डेड रहेगा, पार्टनर रहेगा, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के आसपास होगी। तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बॉन्डेड है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्टेड टुवर्ड क्लोरीन, तो ये क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसकी ज़रूरत तो मुझे हर एक ऑर्गेनिक चैप्टर में पड़ेगी। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन पेयर कोवेलेंट बॉन्ड की अपनी तरफ खींचे हुए रहता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है। अब देखिए क्लोरीन के साथ अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन खींचेगा, तो ऐसा नहीं है कि एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लाइफ टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिव ही रहेगा। इज इट क्लियर? जैसे कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है तो ऑक्सीजन खींचता है, अगर वही ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ है तो क्लोरीन खींचता है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन से क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बात समझ में आ गई? तो ये ऑक्सीजन के बारे में आप क्या बोलेंगे, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन के साथ है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर मेरी हाइट मानो कि 6 फुट है, ठीक है, 5 फुट है समझ लो, तो अगर मेरे पास कोई आदमी खड़ा है वो 4 फुट का है तो मैं उसकी कंपैरिजन में लंबा हूँ, और अगर 7 फुट का कोई आदमी है और उसके पास में मैं खड़ा हो जाता हूँ तो उसकी कंपैरिजन में मैं छोटा हूँ। तो दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ कंपैरिजन। ओके, सो इसकी कोई मेजरमेंट, कोई वैल्यू ऐसे वो फिक्स्ड कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है, आगे वाले का तो होता है लेकिन हमारी बुक में कोई न्यूमेरिकल ऐसा सिलेबस में नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी यू कैन कैलकुलेट बाय मैथमेटिकली and electron gain enthalpy also you can calculate mathematically, but electronegativity you cannot calculate mathematically, that you have to assume that this one is more electronegative, this one is less electronegative। तो कोई साइंटिस्ट है जिसने समझाया होगा कि ये कैसे करेंगे। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ रिलेटिव कंपैरिजन, ठीक है। देन आफ्टर 3 स्केल से पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर की जाती है। तो पाउलिंग स्केल से, पाउलिंग है, देखिए पाउलिंग, पाउली का प्रिंसिपल अलग है। अब वो पाउली और ये पाउलिंग, यहाँ पे पाउलिंग है, वो पाउली था, पाउली इज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, और ये है पाउलिंग स्केल। तो वो मत समझ लेना वो दूसरा है ये दूसरा है, दोनों की मदर एक नहीं है। मुलिकन जाफे स्केल, ऑलरेड रोचो स्केल, 3 स्केल से समझाई जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें से बेस्ट वन है पाउलिंग स्केल। तो हम पूरे 12th स्टैंडर्ड में पाउलिंग स्केल का ही यूज़ करेंगे। तो वाइडली यूज स्केल है पाउलिंग का। तो पाउलिंग ने क्या किया, कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है इसलिए हम ये एक्सेप्ट करते हैं, काफ़ी कुछ समझा सकते हैं। तो हम लेते हैं एकदम बड़ा आदमी, दुनिया का बड़ा आदमी मान लो कि 10 फुट का है, छोटा आदमी मानो कि 3 फुट का है दुनिया का, बाकी के सब बीच में आते हैं, तो सबको कंपेयर कर सकते हैं। तो उसने बोला कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, उसमें सबसे मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन है, उसने आर्बिटरीली वैल्यू दे दी 4। एक लिया लिथियम। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैं स्टैंडर्ड 3 फुट का लेता हूँ, मानो आज कल जाके कोई 2 फुट का आदमी आ जाए तो हम ये 3 फुट का स्टैंडर्ड नहीं बदलेंगे, हम बोलेंगे कि ये तो जो छोटा हमारा है उससे भी छोटा है, ऐसा बोल देंगे, ठीक है। तो आप ये समझना कि पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होगी, 1 से भी कम होगी, लेकिन वो बाद में सर्च हुआ तो
पाउलिंग ने दो रेंज कर दी कि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल, लिथियम इज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन ऐसा आफ्टर पीरियोडिक ट्रेंड नहीं है। कुछ 2-3 एलिमेंट ऐसे हैं उसके उसके ही ग्रुप के जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.1 नेग्लिजिबल कम है। तो बाकी सब एलिमेंट की हम वैल्यू या तो फ्लोरीन के साथ कंपेयर करेंगे या तो लिथियम के साथ कंपेयर करेंगे। मेटल जो होगा एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, पी ब्लॉक में जो नॉन मेटल सब है उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो पहले पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं उसमें क्या है। तो आप किसी भी पीरियड में जाएंगे, इन एनी पीरियड एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक ट्रेंड अब इंक्रीज डिक्रीज वाला आ जाएगा, लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव वाला सिर्फ एक में रहेगा, एंड दैट वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इन पीरियड लेफ्ट टू राइट माय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अब बात अच्छी ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप रिलेशन कर सकते हो मेटालिक कैरेक्टर के साथ। अगर एटॉमिक नंबर पीरियड में इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा नॉन मेटल, जितना ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा मेटालिक। सी नो 100% metal is there, no 100% non-metal is there, okay, like that. If electronegativity is less then metallic character, if electronegativity is more then non-metallic character। अब ग्रुप का ट्रेंड देख लेते हैं, चलिए। इन एनी ग्रुप, आप किसी भी ग्रुप में जाओगे और ग्रुप में हम ट्रेंड लेते हैं टॉप टू बॉटम। याद रखने के लिए लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम ही दिमाग में बिठा लेना, बस और बाद में आपको बॉटम टू टॉप और राइट टू लेफ्ट अगर आपको इंटरेस्ट है तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ABCD A to Z बोलना आसान है, Z to A बोलना डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, पीरियड से रिवर्स ट्रेंड है। तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन मतलब कि कुछ पीरियोडिक टेबल को कंपेयर करके देखते हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर का ग्रुप जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। फर्स्ट नंबर का ग्रुप है वो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। 17 का नंबर का ग्रुप हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फर्स्ट नंबर का ग्रुप लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखिए, कोई अगर किसी बुक आप पढ़ें, कोई रेफरेंस बुक पढ़े, आप केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत डिटेल में कुछ लिटरेचर पढ़ते हैं, तो मानो कि कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का भी वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये कंसेप्ट इससे रिवर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज। कोई आदमी नेगेटिव ज़्यादा है उसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव कम है, कोई आदमी पॉजिटिव ज़्यादा है उसका मतलब क्या, वो नेगेटिव कम है। या तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड प्रिपेयर करिए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मेजोरिटी बुक एक्सप्लेन ऑल द ट्रेंड्स बाय टेकिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन कुछ फॉरेन बुक और ऐसी बुक आपके पास आएगी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को लेके भी वो समझाएंगे, लेकिन उसमें आप जाना नहीं है। हमारी जो यहाँ लोकल सब बुक आएगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लैंग्वेज में ही होती है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई एटम है तो वो है लिथियम, और लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो है सीजियम। उसका मतलब हुआ कि सीजियम हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का अगर आप ट्रेंड देखें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, ये पूरा आपको ये टेबल आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब प्रिपेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट के नाते मैं ये सलाह दूंगा कि ये वैल्यू आप याद रखिए, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब आप मैकेनिज्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत कुछ कोई डिफिकल्ट नहीं है,
दो ग्रुप में ही हमें काम करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रुप नंबर 1 एट अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 17 ऐसा हैलोजेंस। अब ये देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0.1 का डिफरेंस है, 0.1, 0.1, 0 एंड 0.1। तो ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, नियर अबाउट। एग्जैक्ट वैल्यू आप याद मत रखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू याद रखिए, मैं आपको ट्रिक भी देता हूँ ना। लिथियम का 1 तो आपको पता है, यू नो द लिथियम 1, लिथियम 1 उसके बाद 0.1, 0.1 और कांस्टेंट एंड 0.1। तो मेजोरिटी डिफरेंस आपका अगर आप पहला याद रख लेते हो तो 0.1 का है। अब यहाँ थोड़ा है ऐसा, यहाँ 1 का डिफरेंस है और यहाँ जो है 1 और 0.2 का डिफरेंस है, 0.2 का डिफरेंस है। यहाँ जो है वो 0.3 का डिफरेंस है। इसमें अब थोड़ा मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे भी 0.3 का डिफरेंस। तो आप ऐसे याद रख सकते हो 1, 0.2, 0.3, 0.3। कितना पहले और दूसरे के बीच में 1, दूसरे और तीसरे के बीच में 0.2, उसके बाद 0.3, 0.3। ठीक है। अब आप देखिए, सी हियर 4, 3, 2.8, 2.5 और 2.2। ठीक है। ये अगर ग्रुप हो जाए उसके बाद पीरियड में जाइए, पीरियड में ये आप देखिए पीरियड नंबर 3, तो ये बहुत ही रेगुलर ट्रेंड में जाता है। देखिए रेगुलर ट्रेंड में ही जाता है, देखो देखो। तो कैसे, सब में 0.5 का इंक्रीज है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 है ना, 0.5 इंक्रीज। पहला आप याद रखो लिथियम 1, बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। यहाँ पे देखिए 0.3 का इंक्रीज है लास्ट तक, एक को छोड़ के 0.3, 0.9, 0.3 डालिए 1.2, 0.3 डालिए 1.5, 0.3 डालिए 1.8, 0.3 डालिए 2.1। अब यहाँ पे 0.4 है, लेकिन इतना डिफरेंस तो चलता है। और लास्ट में आता है 0.4 और लास्ट में आता है 0.5 यहाँ पे। तो कुछ सिस्टमेटिक अगर जितना याद रहे और आप नहीं रखना चाहते हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस टाइम में तो अब मैं लास्ट एक आपको, अगर आपका मेमोरी पावर अच्छा है तो याद रखिए। अभी आप ये बोलेंगे कि जब यूज़ होगा तो हम अभी बुक में लिख लेते हैं, उस टाइम देख लेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे एक बेसिक रिक्वायरमेंट आगे वो पड़ सकती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से अगर मैं 2 एलिमेंट देता हूँ, चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने चालू की और मैं बोलूँगा कि मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और मैं पूछूँ कि कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको फट से आंसर देना है कि सर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो कार्बन हाइड्रोजन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, थोड़ा डिफरेंस है 0.1 का। जहाँ जहाँ 0.1 का डिफरेंस है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं बोलेंगे, लेकिन 0.1 से 0.7 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम जरूर बोलेंगे। हालांकि पढ़ने के लिए ये डिफरेंस भी हम कंसीडर करेंगे कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अब लास्ट कुछ 2-3 मिनट में मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो, अभी तक हमने जो ट्रेंड देखा ये सब ट्रेंड पीरियोडिक टेबल को साथ में रख के एक बार रिवाइज कर लें। उसके बाद कुछ जो थियरीज के रिलेटेड एप्लीकेशंस है वो ये उसके बारे में हम बात करेंगे। जो जिस साइड एरो जाता है वो दिखा रहा है इंक्रीजेस, पहले समझ लीजिए कि जिस साइड जो एरो जाता है वो एक ही चीज़ दिखा रहा है कि वो चीज़ इंक्रीज हो रही है। ये पूरे डायग्राम में डिक्रीज का कंसेप्ट नहीं है। तो मैं एक बार बोल दूं कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एज वी मूव राइट टू लेफ्ट इन पीरियोडिक टेबल, कौन कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है, तो कि एटॉमिक रेडियस। ठीक है। अब देखिए टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। बॉटम टू टॉप जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें बन, इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। लास्ट मिनट में मैं आपको ये भी समझा दूँ कि सर हम राइट टू लेफ्ट वाला कंसेप्ट तो करते ही नहीं है।
तो आप सभी को लेके लेफ़्ट टू राइट चले जाइए और आपको यहाँ साइन करनी है कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, और एटॉमिक रेडियस जो है उसको भी लेफ़्ट टू राइट ले लीजिए तो वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एटॉमिक रेडियस वाला कंसेप्ट है इसको भी ये जो तीनों कंसेप्ट है इसको आप अगर बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम लेना चाहते हो, ठीक है, एक ही कंसेप्ट पे चलना चाहते हो, तो एरो जो है वो ऐसे कर दीजिए, ऐसे डाउन। तो ये क्या है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब लेस होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस होगी, और इलेक्ट्रॉन, तो आपको यहाँ करना होगा कि ये डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस। ठीक है, और ये दो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियड में जब आप क्रॉस चलते हो तो यहाँ बॉटम से लेके जब आप पी ब्लॉक में टॉप तक ट्रैवल करते हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और ऐसे ही आप रिवर्स में आते हो टॉप टू बॉटम तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? इसका मतलब कि यहाँ पे हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर है, ये भी मेटल है, लेकिन ट्रेंड को दिखाने के लिए आप एक ही एरो कर सकते हो, इसको हम घुमा के ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो। तो पॉसिबल ट्रेंड जो जितना हम पिक्टोरियल दिखा सकते हैं वो दिखाया। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थियरी रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड एटसेट्रा। ओके, वैलेंसी एंड रिमेनिंग। तो एक या दो लेक्चर में हम अब चैप्टर को ख़त्म करेंगे।